Hello all. I hope you have gone through the excretion osmoregulation introductory part, the video that I have released. That was the modes of respiration, where we have seen ureotelic, uricotelic, and ammonotelic organisms, and the way these nitrogenous waste, the metabolic waste are produced, during the protein metabolism, that is catabolism of the proteins, ammonia is produced, and there is amino group of the proteins is converted into ammonia, and the ammonia being very toxic, it was later converted into least toxic or less toxic, called as urea in the liver during a cycle called as ornithine cycle, which required very little amount of ATP molecules. And later we could see that this ammonia can even be converted into another form, that is uric acid, which requires more energy in production. Okay, we have seen this. So if you remember, I told you that the protein metabolism is going to actually responsible for release of the nitrogenous waste like urea, uric acid, and ammonia. Besides this, uric acid is produced during the metabolism of your nucleotides, especially the purine and pyrimidine metabolism, that is are going to actually release these uric acid. And we even have seen that the failed metabolism of the uric acid, if it gets stored in the joints, it leads to a pathological condition called as gout. Okay, so I am directly entering into the topic today. So we have seen that excretion is the removal of metabolic waste, okay, like urea, uric acid, or ammonia from the body of a living organism. While osmoregulation is going to be the way of maintaining the levels of the water and salts in the body, is being called as osmoregulation. So today we are going to check the excretory organ, or the most important urinary system, which is involved in the excretion. Okay, so food residues are removed as stools or feces, okay, through the alimentary canal. Okay, but the excretion is going to be the removal of the metabolic waste from the body, and that is going to be done by the system called as a urinary system. Okay, so before we go into the urinary system, I introduce you to the parts of the urinary system. Let me actually show you the functions of the urinary system. Okay, functions of the urinary system. First, coming on to, if you can check this functions of the urinary system here, the things that are given here are to maintain the stable internal environment. As you know that we have seen osmoregulation, that is also one of the process where the water and the salt levels are being maintained constantly. Okay, coming on to, we are removing the metabolic waste from the body, including it might be urea, uric acid, or ammonia. And coming on to, it's maintaining the levels of the water as well as the salt levels, that is osmoregulation here. And coming on to maintaining the correct pH. pH is nothing but by excreting the H plus ions. By excreting the H plus ions, what we can do is we can remove off these we can remove off these H plus ions, and we can reduce the acidic condition inside the body. Okay, so the functions of the urinary system are going to include removal of the metabolic waste from the body continuously, maintaining or regulating the water and salt mineral levels inside the body, and maintaining the pH levels inside the body by excreting the H plus ions. Okay, so these are the processes, these are the functions maintained by what you call is urinary system. Now, coming to the introduction of the urinary system, the human urinary system is going to comprise of this pair of kidneys. Okay, these are the pair of kidneys what we have, the right kidney and the left kidney. Okay, and the long pipes, the muscular pipes, that is ureters, these yellow pipes. आप ये येलो पाइप्स देख सकते हो, ये वाले, इनको हम बोलते हैं यूरेटर्स. ये अरेज होते हैं हमारे किडनीज से. ओके, और ये दोनों ही यूरेटर्स जो है मस्कुलर है,
और ये पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स करते हैं, जैसे आपके ईसोफेगस में या फुट पाइप में पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आपके यूरेटर्स जो है पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स करके आपके यूरिन को ब्लैडर में पास डाउन करते हैं। ओके, सो हमारे यूरिनरी सिस्टम जो हमारा एक्सक्रीशन करता है, हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालता है, वो है हमारे किडनीज। ओके, पैर है हमारे, एक राइट और एक लेफ्ट किडनी है। अगर आप देख सकते हो तो थोड़ा सा राइट किडनी जो है आपका नीचे तरफ है, सो इट्स बीन पुश डाउन, थोड़ा नीचे तरफ है। द रीजन फॉर दिस इज हमारे राइट साइड में एक बड़ा सा ऑर्गन है जिनको हम बोलते हैं लिवर। ओके, सो लिवर जो है उसके वेट और वजन के वजह से आपके राइट किडनी जो है थोड़ा सा नीचे तरफ झुक गया है व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ द लेफ्ट किडनी। Okay, I'm trying to explain this in Hindi as well because I want to reach to many of the children who actually sometimes it becomes difficulty for them to understand in English. So to reach to the masses, I started speaking in Hindi. Okay, so remember हमारे urinary system में पेयर ऑफ किडनीज है, हमारा राइट किडनी जो है थोड़ा सा नीचे तरफ है लेफ्ट से कंपैरेटिवली। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारा लिवर आता है, लिवर की वजह से ही हमारा राइट किडनी थोड़ा सा नीचे झुके हुआ है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू वी आर हैविंग दिस पेयर ऑफ यूरेटर्स, जो लंबे ये येलो कलर के पाइप्स निकलते हैं आपके किडनी से, इनको हम लोग बोलते हैं यूरेटर्स, और ये मस्कुलर है। तो मस्कुलर है तो ये मूवमेंट क्या करेगा, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट करेगा। ओके, सो दे डू पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स एंड दे पुश द यूरिन, क्योंकि हमारा यूरिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारे किडनीज में। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो देखा तो मैंने बोला था कि यूरिया जो है आपका अमोनिया से लेस टॉक्सिक है, उसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करके क्या कर सकते हैं, 50 ml ऑफ वाटर 1 ग्राम ऑफ यूरिया जो है डाइल्यूट होता है, हमारे ब्लैडर में स्टोर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूरिन। ओके, डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ यूरिया को हम बोलते हैं यूरिन। सो दैट इज गेटिंग स्टोर्ड इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर में हम लोग स्टोर करते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, जो पुशिंग है यूरिन का किडनी से लेके ब्लैडर तक, वो हो रहा है हमारे यूरेटर्स के जरिए। ओके, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कभी कभी क्या होता है, आई थिंक यू हैव लिसन्ड अबाउट स्टोन फॉर्मेशंस। ओके, स्टोन फॉर्मेशंस, अगर हमारा स्टोन्स यूरेटर्स में है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द यूरिन टू पास फ्रॉम द किडनी यूरेटर टू दैट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। दिस लीड्स टू अ वेरी सीवियर पेन, वेरी सीवियर पेन। ओके, यहाँ पर भी आपके स्टोन्स पैक हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। सो यहाँ पर भी होते हैं आपके यूरेटर्स में भी। तो उस टाइम पे आपका यूरिन पैसेज में बहुत पेन होता है फ्रॉम किडनीज टू द टॉप द यूरिनरी ब्लैडर। आपके ब्लैडर कितना साइज में है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इट इज फिल्ड, कितना यूरिन से फिल किया गया है उसके ऊपर से डिपेंडेंट है कि आपका ब्लैडर का साइज क्या है। ओके, अगर इफ इट इज गोइंग टू बी फुल्ली फिल्ड अप, उसका साइज बड़ा रहता है, नहीं तो उसका साइज छोटा ही रहेगा। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा, आपका किडनीज एब्डोमेन में है। ओके, एंड नीचे ही आपके ब्लैडर जो है पेल्विक एरिया में रहता है, पेल्विक एरिया में। आपके ब्लैडर से जो ये जो पाइप निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। दिस इज गोइंग टू बी यूरेथ्रा। So urinary system comprises of pair of kidneys, pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. Generally women में यूरेथ्रा का लेंथ जो है वो छोटा है, लेकिन when we compare to that of males, मेल्स में देखा जाए तो वो वाला बहुत यूरेथ्रा जो है बहुत लंबा रहता है। यूरेथ्रा इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। ओके, हमारा यूरेथ्रा के आजू बाजू में एक स्पेशल ग्लैंड रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। मैं वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन ये वाला याद रखिए कि हमारे प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के दौरान जो यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है, जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है या अमोनिया प्रोड्यूस होता है, वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं करेंगे, हम उनको निकालेंगे। तो वो निकालता है यूरिनरी सिस्टम। उस यूरिनरी सिस्टम का मेंबर्स है हमारे पेयर ऑफ किडनीज है, पेयर ऑफ यूरेटर पाइप्स है हमारे, जो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स करते हैं वो मस्कुलर इन नेचर है, यहाँ पर भी स्टोन फॉर्मेशंस होते हैं। और कमिंग ऑन टू यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है हमारे यूरिन को, और यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है ये पाइप, दिस इज बीइंग कॉल्ड एज यूरेथ्रा।
urethra, this is longer in males when compared to that of the females. You need to understand that. Now coming on to right kidney is just pushed down just because of the presence of liver here. And coming on to आप ये purple चीज जो देख रहे हो, this is going to be the adrenal gland. ये हमारे एक endocrine gland है. Adrenal gland बहुत काम आता है. अगर आपको याद है, मैं हर बार मेरे लास्ट 2 वीडियोस में एड्रेनालिन रश के बारे में बात कर रही थी, जहां पर एड्रेनालिन हार्मोन जो हम जिसको फ्लाइट या फाइट हार्मोन जो बोलते हैं, हमारे कुछ डेंजरस सिचुएशंस में हमको बचाने के लिए हमारा बॉडी जो है एड्रेनालिन जो फ्लाइट या फाइट हार्मोन है उसको रिलीज करता है, और वो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स. एड्रिनल ग्लैंड्स भी एक तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो हमारे किडनीज के ऊपर है यहाँ पर. ओके, सो पेयर ऑफ किडनीज है. अगर आप देख सकते हो तो किडनीज कैसे यूरिन प्रोड्यूस करता है, हमको पता है कि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसके दौरान जो बाई प्रोडक्ट्स है, मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारे, वो जो ब्लड में है उसको लेकर आ रहा है हमारा आयोटा. आयोटा पता है ना आपको, द लार्जेस्ट आर्टरी दैट अराइजेस फ्रॉम योर हार्ट इज बीन कॉल्ड एज आयोटा. सो ये जो आपका आयोटा है जो ब्लड लेकर आ रहा है आपके हार्ट के तरफ से, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द किडनी. सो आयोटा इज कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द हार्ट. सो इट इज रिच इन व्हाट? इट इज रिच इन योर oxygen levels. It is rich in what you call is it's oxygenated blood actually which is present here, and it comes down, it is very much high in urea also, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट में जैसे कि यूरिया है उसमें भी ये वाला ब्लड जो है रिच है डोर्सल आयोटा का. सो दैट इज कमिंग टुवर्ड्स द किडनी. ये आयोटा हमारा ब्रांच होता है एक आर्टरी में. ओके, आयोटा ब्रांच हो रहा है एज हमारे आर्टरी. सो आर्टरीज विच एंटर इनटू अवर यूरिनरी सिस्टम आर बीन कॉल्ड एज रीनल आर्टरी. ओके, दिस इज रीनल आर्टरी एंटरिंग इनटू योर किडनी. Now coming on to आपके रीनल आर्टरीज राइट साइड में भी है और आपके लेफ्ट साइड में भी है. सो ये वाला होगा आपका राइट रीनल आर्टरी और ये होगा आपका लेफ्ट रीनल आर्टरी. सो ब्लड सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड सप्लाई. द biggest blood vessel that is going to be the aorta, taking the oxygenated blood and the blood rich in urea and nitrogenous waste and salts to the kidneys. Okay, now this aorta is branching into artery. This is called as left renal artery and this is called as a right renal artery. Okay, और आपका ब्लड जो यहाँ पर आने के बाद आपका नाइट्रोजनस वेस्ट जो फिल्टर हो जाते हैं आपके किडनी के अंदर, अभी क्या होता है यहाँ पर, दिस इज गोइंग टू बी द ब्लड विच इज गोइंग टू हैव लेसर यूरिया, क्योंकि ये हमारा ज्यादा से ज्यादा यूरिया लेकर आया कौन, आयोटा, और वो आर्टरी बन के किडनी को दिया. लेकिन किडनी ने क्या किया, यहाँ पर यूरिया को फिल्टर करके यूरिन बना के यूरेटर्स में पुश कर दिया. तो अभी ब्लड में क्या हो रहा है, यूरिया का लेवल्स कम होते हैं. सो आपके जो ब्लड जिसमें फिल्टर हो गया और यूरिया कम हो गया है, दैट ब्लड विल बी पुश्ड इनटू रीनल, दैट इज रीनल वेन्स. ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हो दैट इज रीनल वेन. सो एक याद रखना है आपको कि आपका रीनल आर्टरीज में यूरिया ज्यादा है, इसलिए वो गया है और किडनीज में फिल्टर हो गया. फिल्टर होने के बाद जो ब्लड आपका बॉडी में रिटर्न होना चाहिए कम से कम यूरिया से, दैट इज गोइंग टू बी योर रीनल वेन. Okay, this is going to be renal vein. Now renal vein is going to get lodged into the largest vein which is called as inferior vena cava. अगर आपको याद है, इफ यू रिमेम्बर, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा है कि हमारे हार्ट का राइट साइड में दो बड़े बड़े वीना केवा जाते हैं. एक सुपीरियर वीना केवा है और एक इंफीरियर वीना केवा है. इंफीरियर का मतलब नीचे के तरफ से, सुपीरियर का मतलब ऊपर के तरफ से. सो नीचे की तरफ से क्यों, क्योंकि वो किडनी से आ रहा है. ये वाला वेन्स जो है, ये वेन जो है आपका नीचे के तरफ से हार्ट के तरफ जा रहा है. सो वी कॉल इट एज इंफीरियर वीना केवा. इनको हम केवल वेन्स भी बोल सकते हैं, सुपीरियर वीना केवा को और इंफीरियर वीना केवा को. सो केवल वेन्स हमारे, again I'm coming back again. So remember that the blood carried through the aorta is rich in oxygen, that is oxygenated blood, but it is having high amount
amounts of urea and salts that have to get sent out of the body. So your aorta is branched into renal artery. Renal artery enters into the kidneys, and the blood is being filtered, and urine, that is urea and salts, are removed through, and excess water is removed through the urine from this ureters to that of the bladder, and then it is pushed through urethra. Okay, but remember that the blood which is filtered is having lesser amounts of urea. That particular lesser amounts of urea containing blood is entering into the renal vein, and the renal veins are joining together to form inferior vena cava, which is one of the caval veins which carries which carries the deoxygenated blood towards the heart and pours into the right atria. Okay, this is the one. So urinary system में होता है हमारा pair of kidneys. Right वाला थोड़ा सा नीचे तरफ है because of the liver here, और किडनीज के ऊपर टॉप अप है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स, जो हमारे एड्रिनल हार्मोन को रिलीज करता है, जो फ्लाइट और फाइट हार्मोन है. हमारे किडनी से निकलते हैं लॉन्ग पाइप्स जो मस्कुलर है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स दिखाता है, वो है हमारा यूरेटर्स. इसमें भी स्टोन फॉर्मेशंस होते हैं, और दोनों ही यूरिनरी ब्लैडर में पोर अप करते हैं यूरिन को. लेकिन एक ध्यान में रखना है आपको कि हमारे यूरेटर्स जो है, दे डू नॉट ओपन टुवर्ड्स द फ्रंट साइड, they are at the back of the urinary bladder. Urinary bladder के पीछे तरफ से खुलते हैं हमारे ureters. Okay, आगे से नहीं होते हैं, पीछे तरफ से वो खुलते हैं, बेस के तरफ खुलते हैं, ये दोनों बेस के तरफ खुलते हैं दोनों ureters. Okay, ये हमारा urinary bladder है और ये urethra है जो sorry, long in males. It is very long in males. I hope you understood this. And now let me come to another thing about the kidneys only. Let just me come show you this real kidney. Okay, ये हमारा किडनी है जो रेडिश ब्राउन कलर में दिखता है, and you can see that this is actually the muscular ureter, the लंबा वाला ureter जो हमारा आता है, हमारे किडनी से अराइज होता है, जो यूरिन को किडनी से लेके यूरेटर is going to actually carry the urine towards the urinary bladder. Okay, coming on to the renal artery and vein, you can see this, the renal artery and vein. यहाँ पर red और blue में नहीं दिखता है, only to just predict or depict that particular deoxygenated and oxygenated, they have given you red and blue there. Okay, just remember that renal artery is carrying oxygenated blood with a rich in urea and salts and water, but vein is going to carry the blood which is lower in urea because it has got filtered, okay, in the kidneys and sent into the urine, and it's being sent out through the ureter and bladder. Okay, वो एक याद रखना है आपको. And next coming on to आपके kidneys जो है, ये वाला एक बार आप देख लीजिए. These are kidneys. Okay, ये dark मरून वाले जो है ये आपके किडनीज है, पेयर ऑफ किडनीज है, ये आपका वर्टिब्रे है. ओके, आपके किडनीज को देखिए, दे आर बीन पैडेड इनसाइड द फैट. ये येलो कलर का जो आप देख रहे हो, दैट इज एक्चुअली द फैट. इसको हम लोग बोलते हैं पेरीरेनल फैट. Perirenal fat, the fat which is actually lining around your kidneys, perirenal fat. You can even call this particular fat as the what you call is, we are going to call perinephric fat. It can also be called as perirenal, or we can call it as perinephric fat. इसका मतलब ये है, इसका फंक्शन क्या है, is nothing but this perirenal fat is going to give support to the kidneys from the external trauma. इसका मतलब है आपको बाहर से जब कुछ चोट लगे या आपको कुछ हो जाए तो किडनीज डैमेज ना हो, इसीलिए यहाँ पर आपका किडनीज जो है फैट से पैडेड रहते हैं यहाँ पर. ओके, समझ में आया? सो प्लीज जस्ट रिमेंबर दैट आपके किडनीज आर सराउंडेड बाय द फैट ओवर हियर, एंड दैट फैट इज बीइंग कॉल्ड एज अ perinephric fat, and this function is going to be to protect your kidneys from the external trauma. Okay, this is very important. Next coming on to, मुझे और एक important structure दिखाना है आपको kidneys में. This is very important. Now this is becoming complicated, so I want you all children to just go through it very well. So अगर आप kidneys देखते हो तो
Kidneys में we have seen that this particular thing, if you can see, आपके किडनी के ऊपर जो है, we can see that there is a thin membrane, a thin delicate membrane is going to run, that is called as renal capsule. आपके दोनों ही किडनीज के ऊपर एक पतला सा मेम्ब्रेन रन होता है, पतला सा मेम्ब्रेन, उसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल बोलते हैं, रीनल कैप्सूल. और आपका ये जो रीनल कैप्सूल है वो बना हुआ है फाइब्रस टिश्यू से. दिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू. सी, your kidneys are covered by a thin capsule made up of fibrous tissue that is being called as renal capsule. ये बहुत ट्रांसपेरेंट पतला सा एक मेम्ब्रेन है, और ये वाला मेम्ब्रेन में बहुत सारा, एक्चुअली दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. ओके, इट्स मेड अप ऑफ कोलाजन. It's made up of collagen and it is made up of lots and lots of pain receptors. आपको पता है आपको पेन कैसे पता चलता है? बिकॉज हमारे बॉडी में रहते हैं पेन रिसेप्टर्स. हमारे पेन को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स रहते हैं, और उन रिसेप्टर्स का नाम होता है क्या? दैट इज गोइंग टू बी आर नोसिसेप्टर्स. अगर आपने पढ़ा हो आपके कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, आपने देखा होगा कि हमारे पेन के लिए स्पेशल रिसेप्टर्स है और उनका नाम होता है नोसिसेप्टर्स. तो याद रखिए कि आपके किडनी के ऊपर एक पतला सा मेम्ब्रेन है जो फाइब्रस टिश्यू से बना है, which is rich in your collagen, which is made and rich in your nociceptors. तो याद कैसे रखोगे आप ये वाला एग्जाम के लिए? इस रीनल कैप्सूल जब आप लिखते हो तो N को और C को थोड़ा सा अंडरलाइन करके या कुछ डिफरेंट फॉन्ट में लिखिए, N और C को. N stands for nociceptors, C stands for the collagen, P for protein. It's actually a protein fibrous tissue. Okay. So हमको जब भी एक्चुअली लगता है या किडनीज को या बैक में या किडनी पेन जो है, एक्चुअली किडनीज को अगर लग जाता है, जब कोई स्टैब करता है, पीछे से स्टैब करते हैं या किडनीज को लगता है, तो वो बहुत पेनफुल है, बिकॉज द रीजन इज योर रीनल कैप्सूल इज रिच इन नोसिसेप्टर्स. ओके, समझ में आया? फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो आप याद रखिए ये आपका किडनी है, और किडनी के ऊपर एक पतला सा मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग रीनल कैप्सूल बोलते हैं, और इसके ऊपर ही वो वाला फैट रहेगा. इफ यू रिमेम्बर, मैंने पीछे एक जो अभी इमेज दिखाया था, लॉट्स ऑफ फैट इज पैडिंग अप योर किडनी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल ट्रॉमा, इंजरी से आपको बचाता है. तो पहले रहेगा आपका किडनी, किडनी के ऊपर आएगा आपका रीनल कैप्सूल, और रीनल कैप्सूल के ऊपर आता है आपका फैट. समझ में आया? सो अभी बताइए पहले क्या रहेगा? किडनी. किडनी के ऊपर क्या रहेगा? रीनल कैप्सूल. रीनल कैप्सूल के ऊपर कौन रहेगा? आपका पेरिनेफ्रिक फैट रहता है. रिमेंबर दैट रीनल कैप्सूल इज वेरी मच अटैच्ड टू दैट ऑफ योर किडनी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये वाला याद रख लीजिएगा. सो हमने फंक्शंस देखे, सॉरी, हमने स्ट्रक्चर देखा है और किडनीज के ऊपर क्या टिश्यू है और उसके ऊपर कैसा फैट रैप्ड आउट है, वो वाला देखा है. देन कमिंग ऑन टू किडनी का पोजीशन कहाँ पर है, तो फिर ये कहाँ पर रहता है? कहाँ पर रहता है इज नथिंग बट आपका किडनी जो है आपका थोरैसिक 12th वर्टिब्रे से लेके लंबार 3rd वर्टिब्रे तक रहता है. ओके, अगर आप किसी चीज को नापते हो या मेजर करते हो, जैसा टेप है वैसा हमारे बॉडी में यार्ड्स का या मीटर्स का जो टेप रहेगा वो टेप है हमारा वर्टिब्रल कॉलम. ओके, वर्टिब्रल कॉलम. सो किसी चीज को देखने के लिए, उनका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हमारे वर्टिब्रे से उसको रिलेट करते हैं. तो आपके जो किडनीज है वो रहता है थोरैसिक 12th वर्टिब्रे से लेके लंबार 3rd वर्टिब्रे तक रहता है. ये है उसका पोजीशन. तो आपको अभी समझा कि राइट वाला थोड़े नीचे है, वो थोरैसिक 12 से लेके लंबार 3rd तक है उसका पोजीशन, और उसको ब्लड सप्लाई हो रहा है, आयोटा रीनल आर्टरी बन के दे रहा है. जो फिल्टर्ड वाला ब्लड है वो वाला जा रहा है रीनल वेन से, एंटरिंग इनटू इंफीरियर वीना के बाद देन रीचिंग इनटू योर हार्ट. ओके, वो हमारा ब्लड सप्लाई इन शॉर्ट में देखा हम लोगों ने. ओके, अगर हम हमारे किडनी को ट्रांसफर सेक्शन में काटेंगे, ओके, अगर हम उसको ट्रांसफर सेक्शन में या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, सॉरी, अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करेंगे,
ट्रांसवर्स ऐसा हो जाएगा 180। तो लॉन्गिट्यूडनल करेंगे हम 90 डिग्री में, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे तो हमारे जो किडनी है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बहुत सालों से। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में। ओके, सो ये हमारे वी विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। आई विल मेक इट वेरी इजियर फॉर यू। मैं उसको शॉर्ट ट्रिक्स देके उसको आपको याद करवाऊंगी। सो डू नॉट जस्ट टेक अ स्ट्रेन, ओके, जस्ट गिव इट टू मी, आई विल मेक इट इजियर फॉर यू। मैं आपके लिए इजी बना के देती हूँ। तो आप याद रखिए, जब हम लोग हमारे ब्रेन के बारे में पढ़े थे, उसका बाहर का पार्ट को क्या बोला था हमने? कॉर्टेक्स बोला था। ओके, सो वैसे ही यहाँ पर भी आपका किडनी का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे तो पहले आपको याद रखना है कि ये वाला जो है बाहर का स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स एरिया। तो ये हमारा किडनी का है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे? रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे। सो द आउटरमोस्ट पार्ट इज गोइंग टू बी द रीनल कॉर्टेक्स एरिया एंड द इनर एरिया विच इज लुकिंग लाइक दीज लोब्ड स्ट्रक्चर्स, जो है हमारे लोब्स जैसा, जो हमारे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स जैसा दिख रहा है आपको ये वाले। सो ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर्स है, ये वाला और ये वाले, सो इनको हम लोग बोलते हैं क्या? मेडुल्ला। Okay, the topmost outermost area is called as what? Cortex area। और inner वाला जो हमारे pyramids के जैसा, थोड़ा सा lobes जैसा, थोड़ा सा हमारा ये वाले जो pyramids जैसा दिख रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? medulla। So longitudinal section of a kidney is actually divided into two main areas. One is the outer cortical area, renal cortex area, and pyramidal structure area which is being called as a renal medulla। We are going to call renal medulla बोलते हैं उसको। ओके, देखिए हमारा ये जो कॉर्टेक्स एरिया है, थोड़ा सा वो हमारे पिरामिड्स के बीच में भी भाग रहा है। देखिए यही मेरा कॉर्टेक्स है, ये पूरा मेरा कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स जो है मेडुल्ला के बीच में भी जा रहा है। और ये जो कॉर्टेक्स है हमारे मेडुल्ला के पास जो भाग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी एरिया बोलते हैं। Okay, juxta medullary area, please remember that. Once again, outermost is cortex, then the pyramidal structure area is being called as a medulla। Okay, हमारा cortex जो है medulla के बीच में भी रन कर रहा है। Okay, that we will call it as columns। Okay, columns of Bertini also we can call it as columns of Bertini। जो कॉर्टेक्स एरिया आपके मेडुल्ला के बीच में भाग रहा है, दैट इज गोइंग टू बी कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बोलते हैं हम लोग इसको। रिमेंबर, जो हमारा कॉर्टेक्स है, जो मेडुल्ला के पास से भाग रहा है, दिस एरिया, द कॉर्टेक्स एरिया विच इज वेरी नियर टू द मेडुल्ला इज कॉल्ड एज जेक्स्टा मेडुलरी एरिया। इसका मतलब है कि वो कॉर्टेक्स नियर द मेडुल्ला इज कॉल्ड एज जेक्स्टा मेडुलरी एरिया बोलते हैं उसको। ओके, तो नाउ कमिंग ऑन टू ये हमारे जो पिरामिड्स है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल पिरामिड्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है देखिए, रीनल पिरामिड्स, जो हमारा मेडुल्ला पिरामिड्स के जैसे दिख रहे हैं उनको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। ओके, एक किडनी के अंदर देयर माइट बी 6, ओके, और देयर माइट बी 8 to 10 रीनल पिरामिड्स रह सकते हैं। यूजुअली हम लोग 8 देखते हैं। नॉर्मली एक किडनी के अंदर रीनल पिरामिड्स जो है 8 रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं, या कभी कभी 10 तक भी रह सकते हैं। ओके, 6 to 10, जस्ट रिमेंबर दैट, बट नॉर्मली इट इज गोइंग टू बी द 8 नंबर ऑफ मेडुलरी पिरामिड्स और रीनल पिरामिड्स देखे जाते हैं। अगर आप देखते हो कि यहाँ पर जो पाइप्स निकल रहे हैं आपके मेडुलरी पिरामिड से, उनको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स। ओके, फ्लावर्स में इफ यू रिमेम्बर कोरोला एंड कैलिक्स, जो स्टॉक निकलता है, तो वैसे ही ये पिरामिड का ही जो स्टॉक है, इस स्टॉक्स को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। सो यहाँ पर भी कैलिक्स है। अभी इधर आ जाइए, मेडुलरी पिरामिड के वहां से जो स्टॉक निकल रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगी? दिस इज ऑल्सो अ कैलिक्स। ओके, यहाँ पर भी कैलिक्स है हमारा, और यहाँ पर भी कैलिक्स है। ओके, अभी एक बार देखिए, यही कैलिक्स में ये छोटा छोटा जो कैलिक्स है, दिस वन एंड दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर कैलिक्स। और ये जो लंबा वाला थोड़ा सा मोटा है, दैट इज रनिंग हियर, दिस इज बीइंग कॉल्ड एज मेजर कैलिक्स। ये वाला
और यहाँ पर this is major calyx. Okay, this huge one is going to be the major calyx. और यहाँ पर देखिए ये वाला, this is going to be the minor calyces, and this long stalk is being called as a major calyx. यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा, माइनर कैलिसेस रहेंगे और एक मेजर कैलिक्स रहेगा. समझ में आ रहा है आपको? सो कॉर्टेक्स इज द आउटरमोस्ट एंड द मेडुला आर द renal pyramidal structure medulla. This is cortex can even run in between the medulla, that is called as columns of Bertini बोलते हैं. और जो cortex medulla के adjacent में रन होता है उसको हम लोग बोलते हैं juxtamedullary area. ओके फिर उसके बाद स्टॉक्स को बोलते हैं कैलिक्स, छोटे वालों को बोलते हैं माइनर कैलिसेस, और इसको बोलते हैं हम लोग मेजर कैलिक्स बोलते हैं. ये सब कैलिसेस जो है एक जगह पे आके खुल जाते हैं यहाँ पर, दैट इज बीन कॉल्ड एज अ रीनल पेल्विस एरिया. एक्चुअली यू कैन रिमेंबर दिस होल स्ट्रक्चर, वी शेप का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस एरिया. तो आप याद रखिए कि आपके किडनीज एक्चुअली आपके ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं और यूरिन बनाते हैं. ओके बट उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे किडनी में जब हम लोग वर्टिकल सेक्शन करते हैं उसका, तो बाहर का एरिया कॉर्टेक्स है, इनर का एरिया मेडुल्ला है जो पिरामिड्स में डेवलप्ड है, और पिरामिड से निकलते हैं कैलिसेस ओपन होते हैं पेल्विस के अंदर ओपन होते हैं. तो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है, उसका नाम है हिल्लम बोलते हैं. यहाँ पर नहीं है, आई विल शो यू व्हाट इज हिल्लम बोलते हैं. तो हिल्लम को आप कैसे याद रखोगे? इस जिस जगह से किडनी के अंदर रीनल आर्टरी, रीनल वेन, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स जाते हैं, उस जगह को हम लोग बोलते हैं रीनल हिल्लम. HILUM हिल्लम बोलते हैं. हिल्लम आपके टेक्स्ट बुक्स में भी वो रेफर करते हैं हिल्लम के बारे में. सो याद आ रहा है आपको? सो याद कीजिए कि आपके कैलिसेस ओपन होते हैं पेल्विस एरिया में. ओके लेकिन जहां से रीनल आर्टरी, रीनल वेन, नर्व्स और आपके लिम्फ वेसल्स एंटर और एग्जिट करते हैं, उस जगह को हम लोग बोलते हैं हिल्लम. सो ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स जिस जगह से आपके किडनी में एंटर एग्जिट करते हैं उसको बोलते हैं हिल्लम. कैलिसेस जिस चीज में ओपन होता है उसको बोलते हैं पेल्विस. ओके पेल्विस बोलते हैं इसको. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप ड्राइंग डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. सो कॉर्टेक्स, मेडुल्ला, मेडुलरी पिरामिड्स, आपके कैलिसेस है, कॉलम्स ऑफ बर्टनी है, आपके पेल्विस है, और पेल्विस के यहाँ से ही शुरू होता है आपका यूरेटर. आपको याद है ना, द लॉन्ग पाइप, मस्कुलर पाइप जो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके यूरिन को निकालता है. तो यूरिन एक्चुअली बन रहा है कहाँ पर और ब्लड फिल्टर होता कहाँ पर है? यहाँ पर. बिकॉज यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स है जैसे कि आपके किडनी में सम 1 मिलियन ऑफ फंक्शनल यूनिट्स है. जैसे आपकी बॉडी के फंक्शनल यूनिट्स कौन है? सेल्स है. आपके ब्रेन में, आपके नर्वस सिस्टम में फंक्शनल यूनिट्स कौन है? न्यूरॉन्स है. वैसे ही इन योर किडनीज आल्सो देयर आर सम फंक्शनल यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स, देम वी कॉल एज नेफ्रॉन्स. हम नेक्स्ट वीडियो में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ओके बट रिमेंबर दैट हमारे यहाँ के फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स जो है, जो हमारे लिए ब्लड फिल्टर करता है और यूरिया को और सॉल्ट्स को, वाटर को निकालता है, उन फिल्टरिंग यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स. वो नेफ्रॉन्स यहाँ कॉर्टेक्स में रहते हैं और वो मेडुल्ला में भी थोड़ा सा उनके ही पार्ट्स हैंग होते हैं. सो रिमेंबर दैट नेफ्रॉन्स आर हियर ओनली. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रन, यू हैव टू रिमेंबर दैट कॉर्टेक्स और मेडुल्ला ये दोनों को मिला के हम लोग कभी कभी बोलते हैं उसको, we are going to call it as what? We are going to call it as a parenchyma. Renal parenchyma भी बोल सकते हैं उसको, renal parenchyma. Okay, so cortex and medulla togetherly are called as renal parenchyma. Outermost is cortex, inner is the pyramid wala medulla. उनके बीच का cortex is columns of Bertini. Okay, and coming to calyces and pelvis से होता है ureter. तो आपका यूरिन कहाँ से जा रहा है? पैरेन्काइमा से होते होते, दैट इज यहाँ पर आपके मेडुल्ला, दैट इज रीनल पिरामिड से होते होते हो जाता है कैलिसेस में, कैलिसेस से होते होते जाता है वो आपके पेल्विस में, और पेल्विस में होते होते इट गोज इनटू एंटर्स इनटू यूरेटर. ओके यू जस्ट
remember the parts of the vertical section. Let me come to another image such that I can show you some other parts. Okay, so this is the light pinkish color that you can see here is cortex area, and these pyramidal structures जेके उसका base इस तरफ है और ये apex area है. Apex pointed structure is towards this side. Okay, इस apex को ही जो pointed है उसको हम लोग बोलते हैं papilla. We can call it as papilla. अगर कोई टेक्स्ट बुक में या फर्दर कुछ सीरीज पढ़ते हो उसमें पैपिला आता है तो प्लीज रिमेंबर दैट द एपेक्स एरिया, द पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो निप्पल जैसा दिखता है और पॉइंटेड जैसा है उसको हम लोग बोलते हैं पैपिला. वी आर गोइंग टू कॉल. ओके, मैंने जो बोला था आपके फंडामेंटल यूनिट्स है, फंक्शनल यूनिट्स है किडनी के या नेफ्रॉन के, दैट इज आपके नेफ्रिक सिस्टम के या यूरिनरी सिस्टम के, वो है आपका नेफ्रॉन. यहाँ पर है नेफ्रॉन. सो ये नेफ्रॉन जो है वो स्टार्ट होता है आपके यहाँ से स्टार्ट होता है. दैट इज गोइंग टू बी इन द कॉर्टिकल एरिया. कॉर्टेक्स एरिया में रहता है क्या क्या रहता है, इज गोइंग टू बी आपका ये वाला मैल्फिजन कैप्सूल रहेगा, ये वाला रहेगा, और आपका पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. आप इन पार्ट्स के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इनके पार्ट्स पढ़ेंगे. लेकिन जस्ट याद रखिए कि ये नेफ्रॉन जो है ये कॉर्टेक्स एरिया से ही शुरू होता है. और आप ये जो लंबा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये लॉन्ग पाइप जो है उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं. इतना याद रखिए कि हर जगह पे जितने भी नेफ्रॉन्स रहते हैं आपके कॉर्टेक्स में, आपके कॉर्टेक्स में जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है, हर नेफ्रॉन जो है they are entering into a long structure. This long structure that is being called as what is called as collecting duct. Collecting duct. वो तो अभी यूरिन फिल्टर दैट इज ब्लड फिल्टर हो रहा है आपके नेफ्रॉन में, और फिल्टर होने के बाद क्या होता है इज दैट वाटर, सॉल्ट्स एंड यूरिया टुगेदरली आर पुश्ड इनटू कलेक्टिंग डक्ट. फिर कलेक्टिंग डक्ट से वो जा रहा है कहाँ पर, आपके रीनल पिरामिड का पैपिला एरिया में जा रहा है. पैपिलरी पिरामिड्स यहाँ पर पैपिलरी एरिया. पैपिलरी एरिया से वो जाता है आपके कैलिसस में. कैलिसस आप देख सकते हो यहाँ पर कैलिसस में जाके जाता है पेल्विस एरिया में. पेल्विस एरिया से वो जाता है आपके यूरेटर्स में जाता है. फिर से एक बार आपको बताती हूँ, आपका ब्लड जो है वो फिल्टर होता है नेफ्रॉन्स में. ये वाला आपका नेफ्रॉन है. लेट मी लिटिल बिट जूम एंड शो यू दिस स्ट्रक्चर. Okay, now I think you children are able to see this one. Okay, so you can see that आपके जो नेफ्रॉन्स है वो स्टार्ट होते हैं आपके कॉर्टिकल एरिया में, और उनके जो कलेक्टिंग डक्ट्स है वो है आपके रीनल पिरामिड्स के अंदर. तो ब्लड फिल्टर होने के बाद जो सॉल्ट्स और वाटर और यूरिया है वो जा रहा है नेफ्रॉन से आपके कलेक्टिंग डक्ट में, जो है आपके मेडुलरी एरिया में वो जा रहा है पैपिला में. पैपिलरी एरिया से वो जा रहा है आपके कैलिसस के अंदर. कैलिसस ये वाला देखिए प्लेन वाला कैलिस के अंदर जा रहा है. कैलिस से जाता है आपके पेल्विस में. पेल्विस में जाते जाते वो एंटर हो रहा है आपके यूरेटर से. तो ये ग्रे वाला जो आप देख रहे हो, तो ये ग्रे वाला है आपका पेल्विस, ये वाला है आपका कैलिस, और ये है आपका पैपिला, ये है आपका मेडुलरी पिरामिड्स. आई थिंक नाउ यू चिल्ड्रन हैव अंडरस्टूड दिस वन. तो इसका ब्लड सप्लाई कैसा है? सी नो टेक्स्ट बुक सीबीएसई एनसीईआरटी में भी नहीं है, या कोई भी स्टेट सिलेबस के टेक्स्ट बुक्स में भी ये वाला नहीं दिया है. लेकिन आपको एक्चुअली समझ में आना चाहिए कि ब्लड जा रहा है कैसा. आपको पता है कि ब्लड कौन ला रहा है? आयोटा ला रहा है. आई हैव शोन यू. आयोटा से वो कहाँ ब्रांच हो रहा है? रीनल आर्टरी में. ये रीनल आर्टरी के ब्लड में कौन सा मीन्स व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इज देयर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ रिच अमाउंट्स ऑफ यूरिया and salts and water that should be removed off from the body. तो वो आ रहा है आयोटा से आर्टरी के अंदर. और ये जो आर्टरी जो है पहली बार ब्रांच कर रहा है किडनी के अंदर, इसको हम बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरी. समझ में आया? प्लीज जस्ट रिमेम्बर दिस वन, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. अब बहुत सारे बच्चों को पूछिए कि ब्लड सप्लाई कैसा है, उनको एक्चुअली ब्रेन में है ही नहीं ये मैपिंग की होता क्या है, कहाँ से आ रहा है ब्लड, कहाँ जा रहा है. They just think that कि नेफ्रॉन्स है किडनीज के अंदर वहां पर होता है, लेकिन वो होता कैसा है? Because you are aspiring to become a medical student, so you have to know the history and anatomy of this actually to get into like from where to where the blood just goes. So aorta से आया, renal artery के अंदर गया,
रीनल आर्टरी आपका ब्रांच हो रहा है सेगमेंटल आर्टरी के जैसा. सो दिस टू ब्रांचेस, ये वाला जो है आपका सेगमेंटल आर्टरी है. सेगमेंटल आर्टरी जो है दैट इज ब्रांचिंग इनटू लोब, इंटरलोबार आर्टरी. इसको हम लोग बोलते हैं इंटरलोब्स, क्योंकि ये दो लोब्स के बीच में, देखिए ये दो लोब्स, दो पिरामिड्स के बीच में है, तो इसको मैं बोलूंगी इंटर. इंटर के मतलब बीच में, ये दो लोब्स के बीच में, इंटरलोबार आर्टरी. आर्टरी क्योंकि ये आर्टरी का ब्रांच है और ये जा रहा है पिरामिड के ऊपर की तरफ, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आर्क्यूएट आर्टरी. आर्क्यूएट, इसको जो टर्न लिया वो टर्न वाले को बोलते हैं आर्क्यूएट आर्टरी. ये आर्क्यूएट आर्टरी जो है और एक पतला सा ब्रांच बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोब्यूलर आर्टरी. इसी लोब्यूलर आर्टरी को हम लोग स्मॉल आर्टरी भी बोल सकते हैं, स्मॉल आर्टरी. यही आर्टरी जो है वो कैपिलरीज बनेगा. ओके अगर आपके नेफ्रॉन के अंदर देखेंगे, मैं यहां से आती हूँ, देखिए फिर से, रीनल आर्टरी है, सेगमेंटल आर्टरी है, और ये बन रहा है मेरा इंटरलोबार क्योंकि लोब्स के बीच में है. ये टर्न लिया तो बन गया आर्क्यूएट, आर्क्यूएट से बन गया है इंटरलोब्यूलर, छोटा सा, और वो एंटर हो रहा है मेरे नेफ्रॉन के अंदर, वो बनता है एफेरेंट आर्टीरियोल. याद रखिए यहाँ पर देखिए एफेरेंट. आप एफेरेंट का मतलब जो एंटर हो रहा है अंदर, इफेरेंट, ई का मतलब एग्जिट, बाहर जाना, एग्जिट को बोलते हैं इफेरेंट. इज गोइंग टू बी, ए से स्टार्ट होता है तो वो अंदर आने वाला. सो आपका जो नेफ्रॉन के अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल्स बोलते हैं. ओके सो आपका रीनल आर्टरी बना सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी बना इंटरलोबर आर्टरी, जो टर्न लिया आर्क्यूएट, जो आपके नेफ्रॉन में एंटर हुआ एफेरेंट क्योंकि वो एंटर किया आर्टीरियोल. ओके वही आर्टीरियोल फाइन ब्रांचेस बनता है और वो वाला होता है कैपिलरीज, क्योंकि arteries end into artery, what do you call is arterioles and capillary, then into the capillaries. Capillaries should start as what? They should start as what? Veins, venules and veins. Venules के बाद veins. शायद आपने पढ़ा होगा आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स. सो वैसा यहाँ पर जो आर्टरी है वो ब्रांच हो रहा है एफेरेंट और एंटर हो रहा है आपके नेफ्रॉन में. अभी यहाँ पर फिल्टर होगा. ओके फिल्टर होने के बाद वो आपके जो यूरिन है, दैट इज यूरिया है, पानी है, सॉल्ट्स है, वो यूरिन बन के जाएगा पैपिला में, कैलिस में जाएगा, रीनल में दैट इज पेल्विस में, पेल्विस से यूरेटर से जाएगा. लेकिन ब्लड कहाँ जाएगा? तो फिर तो आपका यहाँ पर एक जो एंटर ले रहा है ब्लड वेसल, उसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल. वही बनता है कैपिलरीज नेफ्रॉन के अंदर और वो बाहर निकलता है इफरेंट आर्टेरियोल्स करके. ई का मतलब बाहर जाना, इफरेंट आर्टेरियोल. ये इफरेंट आर्टेरियल्स जो है आपके नेफ्रॉन के ऊपर बड़ा सा ब्रांच बनता है, जिनको हम लोग बोलते हैं पेरीट्यूब्युलर कैपिलरीज बोलते हैं, वैसा रेक्टा. वैसा रेक्टा जो हम लोग बोलते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा रेक्टा करके. ओके सो वही फिर से सेम स्ट्रक्चर बनेगा. वैसा रेक्टा बाहर निकलेगा, देखिए बाहर निकला यहाँ पर इंटरलोब्यूलर, आर्क्यूएट, इंटरलोबार, इंटरलोबार के बाद सेगमेंटल, फिर उसके बाद आगा रीनल वेन. ओके रीनल वेन. सो दिस इज अ वे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्लड सप्लाई कहाँ से कैसे जा रहा है. ओके सो रीनल आर्टरी जो है, आयोटा जो है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी बन गया सेगमेंटल आर्टरी, वो बन गया इंटरलोबार, वो बन गया आर्क्यूएट, इंटरलोब्यूलर, वो जा रहा है नेफ्रॉन के अंदर एफेरेंट आर्टेरियोल बन के, और वो ब्रांच होता है कैपिलरीज बन के, और वही एग्जिट करता है इफरेंट बन के. फिर वो वाले आपके नेफ्रॉन के ये जो है आपके लूप ऑफ हेनली जो है उसके ऊपर वो ब्रांच होते हैं यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं वैसा रेक्टा, या उसको बोलते हैं पेरीट्यूब्युलर कैपिलरीज बोलते हैं. वो बाहर निकल रहा है लोब्यूलर, आर्क्यूएट, इंटरलोबार, रीनल वेन में जा रहा है. सो दिस इज द वे हाउ द ब्लड सप्लाईज. Children, please remember that I don't want you to remember any of these what you call is names of the nephron, but just remember that मैंने आपको जो बोला है, देखिए यहाँ पर ये एफेरेंट आर्टेरियल जो आपके नेफ्रॉन के अंदर गया और ये ब्रांच हुआ है आपके कैपिलरी बेड बन के. ओके ये वाला, और ये बाहर निकला
इफरेंट बन के, ये जो निकला वो क्या कर रहा है, यहाँ पर ही ब्रांच हो रहा है लंबा सा, ये वाला जो पर्पल वाला जो है, पर्पल एंड रेड, ये पर्पल वाला, तो उसको मैंने क्या बोला, पेरिटिब्युलर कैपिलरीज, और उसको क्या बोल सकते हैं, वैसा रेक्टा भी बोल सकते हैं। ओके, वैसा रेक्टा, वो वैसा रेक्टा सब ये कहाँ ओपन हो रहे हैं, ये ब्लू वाला आपके ज्वाइन होके बनते हैं आपका रीनल वेन, तो ब्लड का सप्लाई यहाँ से है और बाहर जा रहा है वैसा, समझ में आया, तो ये हमारा ब्लड सप्लाई है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज वीडियो प्लेबैक करके चेक कीजिए, ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, to understand the mechanism from where is it entering or from where is it actually going in and exiting it out. So that is very, very important, children. So you have to know this one. So I think you have understood that urine ka flow alag hai, blood ka flow alag hai yahan par. Okay, so these all are very, very important for you to remember. So so sorry. एंड कमिंग ऑन टू, मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात किया था, ये देखिए आपका यूरिनरी ब्लैडर है ये वाला, ये हमारा यूरेथ्रा है जो लंबा वाला। बहुत सारे बच्चे दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके किडनी से जो निकल रहा है लंबा वाला उसका नाम होता है यूरेटर, टर, ओके, और ये होता है आपका यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन, ओके, ये होता है आपके ब्लैडर से निकलता है, जो किडनी से निकल रहा है यूरेटर, ओके, एंड दिस इज यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू, मैंने बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके यूरेथ्रा के एडजेसेंट साइड में होते हैं सम ग्लैंड्स, उनको जो हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं रहता है, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जैसे मेल्स में एज बढ़ता रहता है, जैसे वो 45 के अबव हो जाते हैं, तो उनकी उम्र बढ़ने की वजह से उनके प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है वो एनलार्ज होने लगते हैं, एनलार्ज होने लगते हैं। वो एनलार्ज कैसे होते हैं, बाहर की तरफ भी होते हैं, अंदर की तरफ भी वो लोग एनलार्ज होने लगते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स ऑल द डायरेक्शंस, सो टुवर्ड्स आउटसाइड, टुवर्ड्स इनसाइड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स बल्ज होने की वजह से इनका यूरेथ्रल कैनाल जो है बहुत नैरो हो जाता है, बहुत थिन हो जाता है। अगर आप यहाँ से यहाँ कंपेयर करेंगे तो इनका जो है यूरेथ्रल कैनाल जो है बहुत ही नैरो डाउन हो गया है, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स एनलार्ज हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके यूरिन पैसेज जो है ट्रिकल बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। नॉर्मल यंग जवान बच्चों में जैसा यूरिन पास होता है वैसा इनमें नहीं होता, और बहुत सारा यूरिन जो है यहाँ पर ही बच जाता है, रिटेंशन होता है और इन्फेक्शंस का रीजन बन जाता है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज seen mostly in the aged males above 45, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उनका enlarge हो जाता है। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। एंड नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, मैंने एक कंडीशन बात किया था कि आपके यूरेटर्स में भी स्टोन फॉर्मेशंस होते हैं, हम लेसन के एंड में उनके पैथोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक याद रखिए कि जब ब्लैडर से आपके यूरिनरी इन्फेक्शन शुरू होता है या आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू होता है, वो स्लोली पास होता है यूरेटर की तरफ, ऊपर जाने लगता है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन जो है वो यूरेटर्स में पास होगा तो उसको बोलते हैं पाइलाइटिस बोलते हैं, उसमें भी बहुत पेन रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका जो यूरिनरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कॉर्टेक्स और मेडुल्ला एरिया तक फैल जाता है। इन्फेक्शन विल पास फ्रॉम यूरेटर्स टू दैट ऑफ योर पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा कौन है, कॉर्टेक्स और मेडुलरी एरिया में होता है, तो उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस। इट इज अ वेरी सीवियर कंडीशन, पाइलोनेफ्राइटिस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उनका स्प्रेड हो रहा है यूरेटर से लेते लेते टुवर्ड्स योर किडनी पैरेन्काइमा। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो नेफ्राइटिस, पाइला, दैट इज पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं यहाँ के आपके किडनी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। ओके, दीज आर द थिंग्स, आई होप आई मेड इट क्लियर। आपके किडनी के ऊपर एक पतला सा मेम्ब्रेन है जो उसको बिल्कुल ही अटैच्ड है, उसका नाम क्या है, रीनल कैप्सूल, जिसमें नोसिसेप्टास है, वो प्रोटीनेशियस फाइब्रस टिश्यू है। देखिए ये लेसन में आपका एनाटॉमी बहुत जरूरी है,
कहाँ पर कौन से टिश्यूज है, कौन से सेल्स है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज से हमने शुरू किया है इन चीजों को, कहाँ कौन सा ग्लैंड है, कौन सा किडनी नीचे झुकता है वहां पर, ओके। फिर पेरिनेफ्रिक फैट, उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे हेल्प करता है आपके लिए, ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यू नीड टू रिमेम्बर all these things, children, the level from where is it present, and what are the functions, blood supply kaisa hai, and urine production kaise hota hai uska. In the next coming video we'll be seeing the structure of the nephron. Today I just introduced with the vertical section of kidney, the parts of the urinary system, some pathological conditions we have seen, how are they present, and I have given you all those things to remember. Main aapko नेक्स्ट वीडियो में आई विल इंट्रोड्यूस यू विद द पोर्टल सिस्टम, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को पोर्टल सिस्टम्स समझते नहीं है, तो वो वाला एक हम लोग देखेंगे, पोर्टल सिस्टम को देखेंगे, ओके। एंड कमिंग ऑन टू the next video, as I told you that I'll be talking about the sorry, I'll be talking about the structure of the nephron. उसका भी diagram बहुत जरूरी है आपके लिए, आज जो देखा वर्टिकल सेक्शन भी बहुत जरूरी है, और नेक्स्ट कमिंग वीडियो का नेफ्रॉन भी जरूरी है, ओके। सो जस्ट गो थ्रू इट वेरी वेल. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, प्लीज प्ले बैक एंड चेक इट आउट. इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट्स, please post it in the comment sections. If you love the video and if you love my explanation, please try to give a like, and try to please share my video to many of the children, okay. And please do comment, because that is going to be encouragement for me to do many more videos for you children, as I started this very newly. It's been 1 week I have started posting my videos for you children, okay. So if you please like, please do comment and try to share it with your friends, okay. Thank you so very much. Thank you.